Hello students, I am Meenu, Assistant Professor from GCW Bhavani Kheda. Today we are going to discuss about bus and memory transfer. In the last lecture we have discussed about the register transfer language. Now, firstly, what is bus? Basically, bus consists of a set of common lines, one for each bit of register, through which binary information is transferred one at a time, and there are some control signals which determine that which register is selected by the bus during a particular register transfer. अगर हम किसी भी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक बस की रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली जो बस है वो सेट होता है कॉमन लाइंस का, जिसके थ्रू हम रजिस्टर की हर बिट की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं उस बस के थ्रू. Now it can be understood by the following diagram. Bus structure by using multiplexer. In this diagram we used 4 multiplexers of 4 into 1. It means there are 4 input and 1 output, and we use 4 multiplexers. And for the 4 into 1 multiplexer there are 2 select lines, that is S0 and S1. Now every multiplexer is connected from these 2 select lines, that is S0 and S1, and S0 and S1 determine the input of the multiplexer. Suppose S1 and S0 की हमारे पास अगर 0 वैल्यू है तो 0 वाली वैल्यू हमें सेलेक्ट करने के लिए मल्टीप्लेक्सर के अंदर 0th बिट देगा. अगर 01 है तो वो फर्स्ट बिट को सिलेक्ट करेगा, अगर 10 है तो वो सेकंड वाली बिट को सिलेक्ट करेगा, एंड 11 है तो वो थर्ड वाली बिट को सिलेक्ट करेगा. लेट्स सी, अगर हम S1 और S0 की बात करें तो देयर आर 4 कॉम्बिनेशन, दैट इज 00, 01, 10 एंड 11. And 00 select the 0th bit of the multiplexer, 01 select the first bit of the multiplexer, 10 select the second bit of the multiplexer, and 11 select the third bit of the multiplexer. And the output of each multiplexer form a 4-line common bus. Bus is basically what? Bus consists of common lines. Okay. Now in this diagram there are 4 multiplexer and we use 4 register, that is register A, register B, register C and register D, and each register contain 4 bit, and these 4 bit determine the size of the multiplexer. अगर हमने एक रजिस्टर 4 बिट का लिया है तो हम मल्टीप्लेक्सर 4 into 1 का लेंगे. अगर हम इसी रजिस्टर के अंदर 8 into 1 8 बिट का लेते तो हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते 8 into 1 का. तो जितने बिट का रजिस्टर होगा उतने ही बिट की कॉन्फ़िगरेशन का हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे. अब हर रजिस्टर की हमने कहा रजिस्टर ए के अंदर 4 बिट हैं, बी के अंदर भी 4 बिट हैं, सी में 4 बिट हैं, डी में 4 बिट हैं, दैट इज़ 0 1 2 3. एंड हर एक रजिस्टर की 0th बिट कनेक्टेड होगी आपकी हर मल्टीप्लेक्सर के साथ, राइट. लाइक अगर हम रजिस्टर ए की A0 से बात करें तो A0 इज़ कनेक्टेड टू दिस मल्टीप्लेक्सर एंड A1 इज़ कनेक्टेड to this multiplexer, A2 is connected to this multiplexer and A3 is connected to this multiplexer. Okay. Now every bit is connected to every multiplexer. अगर हमारे पास अब सेलेक्ट लाइन्स है S0 एंड S1, जैसे बताया S0 S1 की 00 अगर बिट होगी तो 0th बिट सेलेक्ट होगी, 01 होगी तो फर्स्ट, 10 है तो सेकंड, 11 है तो थर्ड बिट सेलेक्ट होगी. इसी तरीके से देखो
अगर S0 S1 की वैल्यू 0 0 है, 0 0 का मतलब फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर से भी 0th बिट सेलेक्ट हुई, सेकंड मल्टीप्लेक्सर से भी 0 बिट सेलेक्ट हुई, थर्ड से भी एंड फोर्थ, चारों मल्टीप्लेक्सर से हमारी 0th बिट सेलेक्ट हुई। अब 0th बिट पे हमारे पास क्या है, दैट इज़ A0, A1, A2 एंड A3। इट मीन्स हमने किसको सेलेक्ट किया है, रजिस्टर ए की बिट को सेलेक्ट किया है फ्रॉम द 0 0 कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से अगर हम 0 1 की बात करें तो 0 1 के अंदर हमारी जो मल्टीप्लेक्सर की बिट सेलेक्ट होगी वो फर्स्ट बिट होगी, और फर्स्ट बिट किससे कनेक्टेड है, बी मल्टीप्लेक्सर की हर एक बिट से सेलेक्टेड कनेक्टेड है, दैट इज़ B0, B1, B2 एंड B3। एंड इसी तरीके से रजिस्टर सी एंड रजिस्टर डी। Now see, the two selection lines S1 and S2 are connected to the selection input of all 4 multiplexers. बताया अभी। And the selection lines choose the 4 bits of one register and transfer them into the 4 line common bus. Now, when both of the select lines are at low logic, that is 0 0, then 0 data inputs of all 4 multiplexers are selected and applied to the outputs that forms the bus. This in turn causes the bus line to receive the content of register A, since the output of this register are connected to the 0 data input of the multiplexer, कि हर एक मल्टीप्लेक्सर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ A0, A1, A2 एंड A3। तो हमारा कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर ए सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास S1 S0 की वैल्यू 0 1 होगी तो रजिस्टर बी इज सेलेक्टेड एंड द बस लाइन्स विल रिसीव द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर बी। नाउ सी हियर, व्हेन S0 and S1 is 0, then register A is selected as from all multiplexers A0, A1, A2 and A3 bit are selected. Like this, if the value of S1 S0 is 0 1, then B register is selected as B0, B1 and B2, B3 bit are selected from the input of the multiplexer. Similarly, if we have value of S1 and S0 is 1 0, then register C is selected, and the value of S1 S0 is 1 1, then register D is selected. Now, this is the common architecture of the bus by using multiplexers. Okay? अगर हम मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ करते हैं तो हमारा जो कॉमन बस आर्किटेक्चर होगा वो ये वाला होगा। सेकंड है हमारे पास 3 स्टेट बस बफर। नाउ ए बस सिस्टम कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3 स्टेट गेट इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। अभी तक हमने क्या किया था कि बस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया था बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। अब हम बात करते हैं 3 स्टेट गेट की। इट मीन्स 3 स्टेट गेट बफर। The 3 state gates can be considered as a digital circuit that has 3 states, 2 of which are signals equivalent to logic 0 and 1 as in conventional gate. एक अगर हम सिंपल गेट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 2 लॉजिक होते हैं, दैट इज़ 1 एंड 0। अब यहाँ पर जो 3 स्टेट है तो थर्ड स्टेट हमारे पास कौन सी होगी, दैट इज़ high impedance state, and this high impedance state acts like an open circuit। हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा ये थर्ड स्टेट, दैट इज हाई इम्पीडेंस स्टेट। मोस्ट कॉमनली यूज 3 स्टेट गेट्स इन द केस ऑफ बस सिस्टम इज अ बफर गेट। नाउ ग्राफिकल अगर सिंबल की बात करें हम 3 स्टेट बफर की, तो ये हमारा बफर है। नॉर्मल इनपुट होगा A, आउटपुट होगा Y, सेकेंड नॉर्मल इनपुट होगा B। Y की वैल्यू A कब होगी, जब हमारे पास C की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर हमारे पास C की वैल्यू 0 होती है तो C की वैल्यू 0 का मतलब है कि ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में है।
ये वाला बफर। अगर हाई इम्पीडेंस स्टेट में है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, हमारे पास ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, और ओपन सर्किट की तरह एक्ट करने से कोई भी वर्किंग नहीं होगी। इट मीन्स आउटपुट के अंदर कोई भी आउटपुट नहीं होगा। अगर वैल्यू सी की 1 होगी तो हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू होगी, जो भी हमने नॉर्मल इनपुट दिया है ए, वही हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नाउ जो बस सिस्टम है, हम 3 स्टेट गेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय यूजिंग डिकोडर। वहाँ हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया था, यहाँ हम डिकोडर और 3 स्टेट गेट बफर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे एक बस सिस्टम को। नाउ 2x4 डिकोडर का यूज़ करेंगे। हमने 4 रजिस्टर लिए हैं तो इसलिए 2x4 का डिकोडर यूज़ होगा। सेलेक्ट लाइन होंगी, हमारे पास 2 सेलेक्ट लाइन है, एक हमारे पास इनेबल लाइन है, और आउटपुट के अंदर 0, 1, 2 एंड 3 हैं। 0 इज़ कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, 1 इज़ कनेक्टेड टू बी रजिस्टर, 2 is connected to C register and 3 is connected to D register. इट मीन्स जितनी भी अगर हमें नंबर ऑफ बिट्स लेनी है हर रजिस्टर के अंदर, उतनी ही बिट के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला जो डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट होगा। अब ए कनेक्टेड है हमारा बफर के साथ, इसी तरीके से बी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है। सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करती है कि हमारा कौन सा आउटपुट एक्टिवेट होगा। सपोज अगर हम सेलेक्ट लाइन की बात करें, दैट इज़ अगेन वही S0 एंड S1। 0 0 है तो हमारी बिट सेलेक्ट होगी 0 वाली, 0 1 है तो हमारी बिट सेलेक्ट होगी 1, 1 0 है तो सेलेक्ट होगी 2, और 1 1 है तो हमारी बिट सेलेक्ट होगी 3rd। 0 0 सेलेक्ट होने का मतलब 0 0 पर 0 सेलेक्ट होने का मतलब है हमारे पास सेलेक्ट क्या होगा, दैट इज़ ए मीन्स कि रजिस्टर ए के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स हैं, A0 to A3, और जितने भी बिट का रजिस्टर हमारे पास होगा वो हर एक बिट रजिस्टर के अंदर हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द सेलेक्ट लाइन 0 0। अगर हमारे पास सेलेक्ट लाइन का इनपुट 0 1 है तो हमारी फर्स्ट वाली बिट एक्टिवेट होगी, और फर्स्ट वाली एक्टिवेट होने का मतलब है हमारा कौन सा रजिस्टर एक्टिव होगा, बी। तो बी रजिस्टर की हर एक वैल्यू बिट वैल्यू एक्टिवेट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम S0 S1 की वैल्यू 1 0 लेते हैं तो हमारी सेकंड वाली आउटपुट एक्टिवेट होगा डिकोडर का, इट मीन्स रजिस्टर सी सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर 1 1 लेते हैं तो हमारी थर्ड वाली बिट एक्टिवेट होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर डी की हर एक बिट एक्टिवेट हो जाएगी। Now the output generated by the 4 buffer are connected to form a single bus line. हर एक बफर के आउटपुट जो कनेक्टेड होंगे वो किसको फॉर्म करते हैं, बस लाइन। सी हेयर कि ए बी सी एंड डी हर एक बफर ने किसको कंस्ट्रक्ट किया है, आपकी एक कॉमन बस लाइन को कंस्ट्रक्ट किया है। ओनली 1 बफर कैन बी एक्टिव स्टेट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने 2x4 डिकोडर का यूज़ किया है तो एक टाइम पे हमारे पास एक ही बफर एक्टिवेट होगा, चाहे वो रजिस्टर ए का हो, बी का हो, सी का हो या डी रजिस्टर की बिट हो। एंड द कंट्रोल इनपुट टू द बफर्स डिटरमाइन विच ऑफ द फोर नॉर्मल इनपुट विल कम्युनिकेट विद द बस लाइन। जो भी आपके कंट्रोल इनपुट हैं बफर के, वही डिटरमाइन करेंगे कि आपके चारों में से बस लाइन में कौन सा एक्टिव होगा, कौन सा कम्युनिकेट करेगा। A 2x4 decoder ensures that no more than one control input is active at any given point of time. 2x4 decoder में select line will select the input at any point of time. This is all about the bus which is constructed by the using 3 state gate buffer. अब हम बात करते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट द बस आर्किटेक्चर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बस बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड बाय यूजिंग 3 स्टेट गेट बफर। नाउ मेमोरी ट्रांसफ़र, व्हाट इज़ मेमोरी ट्रांसफ़र?
मेमोरी से हम जो भी डाटा एक्सेस करते हैं या जो भी डाटा इंसर्ट करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, मेमोरी ट्रांसफ़र। मेमोरी के अंदर हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ रीड एंड सेकंड वन इज़ राइट। The transfer of information from memory unit to the user end is known as the read operation. मेमोरी से हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीड ऑपरेशन कहेंगे। एंड द ट्रांसफ़र ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी इज कॉल्ड द राइट ऑपरेशन। और मेमोरी के अंदर अगर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम बोलेंगे राइट ऑपरेशन। जो भी हम इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं मेमोरी के अंदर उसको हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन। बेसिकली मेमोरी वर्ड इज़ डिजिग्नेटेड बाय द लेटर एम। मेमोरी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। वी मस्ट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड वाइल राइटिंग द मेमोरी ट्रांसफ़र ऑपरेशन। अगर हम रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें मेमोरी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी कि हम किस पर्टिकुलर एड्रेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर एड्रेस पे हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड द एड्रेस रजिस्टर इज़ डेजिग्नेटेड बाय द कैपिटल AR and the data register is designated by the capital DR। एड्रेस रजिस्टर को हम AR से रिप्रेजेंट करेंगे एंड डाटा रजिस्टर को हम DR से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ रीड ऑपरेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, रीड कॉलन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इट मीन्स M स्टेटेड फॉर मेमोरी एंड AR इज़ फॉर एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी के इस पर्टिकुलर एड्रेस में हमारे पास जो भी डाटा है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, हमारे डाटा रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। द रीड स्टेटमेंट कॉजेज द ट्रांसफ़र ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू द डाटा रजिस्टर फ्रॉम द मेमोरी वर्ड सेलेक्टेड बाय द एड्रेस रजिस्टर। जो भी एड्रेस रजिस्टर में हमारे पास एड्रेस होगा उसी को सेलेक्ट करके हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे डाटा रजिस्टर के अंदर। And the corresponding write operation can be stated as write M। write M means कि कोई भी हमारे पास रजिस्टर के अंदर इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हमें उसको किस में ट्रांसफ़र करना है, एड्रेस रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। एड्रेस रजिस्टर क्या डिफ़ाइन करेगा कि हम मेमोरी के अंदर किस पर्टिकुलर एड्रेस पर न्यू इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रजिस्टर R1। तो एड्रेस रजिस्टर शो क्या करेगा, एड्रेस शो करेगा मेमोरी का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑपरेशन हो जाएगा। तो हमारे पास रीड एंड राइट दो ऑपरेशन होते हैं। मेमोरी के अंदर हम क्या करेंगे, या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और एड्रेस रजिस्टर इज़ कनेक्टेड थ्रू द मेमोरी यूनिट। डाटा हमारे पास इन होगा या डाटा आउट होगा। डाटा इन मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म डाटा इन होगा, इट मीन्स हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नई इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर रहे हैं मेमोरी यूनिट के अंदर। एंड डाटा आउट मीन्स हम एक्सेस कर रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोरी में से फ्रॉम द रीड ऑपरेशन। दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी। दो ही ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, रीड एंड राइट। तो उन दोनों ऑपरेशन से हम मेमोरी के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आज हमारे पास टॉपिक था बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। बस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड बाय यूजिंग 3 स्टेट गेट बफर। दोनों की हेल्प से हम एक बस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और किसी भी रजिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द कॉमन बस। नाउ सेकंड था हमारे पास मेमोरी ट्रांसफ़र। मेमोरी ट्रांसफ़र के अंदर हमारे पास
दो ऑपरेशन होते हैं, रीड एंड राइट। रीड एंड राइट के थ्रू हम मेमोरी के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। या तो हम डाटा को रीड करेंगे मेमोरी से, या हम डाटा को इंसर्ट करेंगे मेमोरी के अंदर। दोनों के दोनों रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे हमारे मेमोरी ट्रांसफ़र के अंदर। This is all about bus and memory transfer. In the next lecture, we discuss about the micro operations, different types of micro operations. Thank you.